एग्जांपल हमें जो भी इनपुट बिट्स कराने हैं, वी हैव टू सी द location of these or the position of these status of these shift register, and with the help of the values which we are having in the shift registers, we have to do the modulo 2 addition according to the relationship, right? So for example, to get the value of vk1, what you will do, you will take the modulo 2 addition of all these three bits dk, dk minus 1 and dk minus 2, and to get the value of vk2, you will do the modulo 2 addition for dk, dk minus 1 and dk and dk minus 2 only, right? Because this blue link is for only dk and dk minus 2, and these two links will give you the output vk2, right? So once you are getting these vk1 and vk2 bits, so what you will do, you will note down these all bits in serially, and you will get the convolution code, and you have to do the entire operation till we are reaching the position where all the values of shift register or the status of shift register will become 000, right? So today the lecture is very interesting because we want to see a graphical representation of the encoder, which is very popular and known as code tree. Mind it, it is very important, right? And in some cases, people will think that it is a complex representation, but we'll see today how simply we can represent the code tree and what is the advantage of this code tree. Once you are having the code tree for a particular figure, see, code tree is always about a particular figure, it is not a general diagram. So for example, this is your convolution encoder. This is your convolution encoder. So for this convolution encoder, you can design a code tree. And once you design the code tree, then you can find out the code for different data inputs. Mind it, for different data inputs with the help of this single code tree. अभी कोई भी डेटा इनपुट हो रहा है, आप किसी भी डेटा इनपुट के लिए अगर ये कोड ट्री आप डिजाइन कर लेते हो, एक बार के लिए प्रोसेस है ये, इसको डिजाइन करना थोड़ा टफ है, टफ इन द सेंस थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, वो हम समझ लेंगे। लेकिन अगर ये कोड ट्री पूरा डिजाइन हो जाता है तो फिर आपका कितने भी बिट का डेटा लेंथ हो, कोई भी डेटा लेंथ हो, आप बार बार उस कोड ट्री से ही कई सारे कोड जनरेट कर सकते हो। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक इनपुट फिक्स किया था लास्ट लेक्चर में 11010 फॉर एग्जाम्पल, और केवल उसके लिए हमने यहाँ पर कोड लिखा था। सो हमें हर एक बिट के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ी थी और फिर एक सॉरिंग कैलकुलेट करके हमें कोड लिखना पड़ा था। बट इफ यू डिजाइन अ कोड ट्री फॉर अ पर्टिकुलर फिगर, तो फिर अब इस फिगर के लिए आप कोई भी डेटा दे दीजिए, आई विल सॉल्व द कोड just by visualizing and this code tree or following some particular algorithm, right? So this is the importance of code tree. So code tree can be used for encoding as well as decoding of convolution code. It can also help us in decoding, right? No, it is not. Okay, so you can write down the definition of code tree. So we know that we can use the code tree for encoding as well as decoding purpose, right? So you can write down the definition of this code tree. The code tree, the process of coding and decoding of the convolution code can be facilitated by the algorithm, graphically represented algorithm, ऐसे लिख लेंगे, by the graphically represented algorithm named as code tree, right? So once you will have this code tree, the concept of this code tree, then you can solve the encoding as well as decoding of the convolution code,
right? And mind it, this code tree will be for a particular encoder, right? So you can also note it down. The code tree is always dedicated to the particular encoder, right? So it is not a general diagram. Sometimes people get confused with it, right? They treat that code tree is a general diagram. It is not valid for all the encoders. Every time you have to generate the code tree for a particular encoder. So for example, today I'm going to see the code tree for this encoder, right? For this encoder, because we have already seen the convolution code for this encoder. So we'll remain we will always use this kind of encoder so that the understanding of the concepts can be easy for us. So that's why I'm not changing the encoder figure, right? Or encoder, convolution encoder, or the number of shift registers, right? So everything I'm remaining constant, or I'm going with this figure to understand the concept of code tree, right? So now we can start with the concept of code tree. And we know that code tree can be very helpful in the process of encoding and decoding, right? And what is the advantage? That for a particular encoder, now you can change the any data, right? Even you can find the code just by following a particular algorithm or pattern in the code tree diagram, right? So how this code tree diagram can be generated? Now we have to see. So in the code tree diagram, see, there is a simple steps. First step is that whenever your inputting bit is zero, right? For example, you are inputting 0 bit. See, you are having only two options. Either you can input 0 bit or you can input one, because in binary communication the possibility is only about either zero or for one, right? So if you are entering zero or if you are entering one, right? If you are entering zero, then you have to move in upward direction, right? If you are entering 1, then you have to move in the downward direction. But this you have to remember whenever you want to design a code tree. If your inputting bit is 0, you have to move in the upward direction. If your inputting bit is 1, then you have to move in the downward direction. So for example, this can be the branch from where you can start, right? So I'm starting with this concept, right? This is our first branch. For example, this branch is for when the input bit is 0, then I have to move upward. And this branch is for what? It is for 1. If our input bit is 1, I have to go downward, right? So this can be the situation. It is first iteration, right? This is first iteration, or you can say that it is first time instant in which you are looking for 1 bit. So first input bit is 0, then you have to move upward. If first input bit is if first input bit is sorry if first input bit is 0, then you have to move upward. If first input bit is 1, you have to move downward, right? Now you draw it like this, right? If first input bit is 0, first input bit is 0, सो स्टार्टिंग की पॉइंट है ये। स्टार्टिंग पॉइंट में क्या होगा, सारे जीरो जीरो होंगे और पहली इनपुट बिट भी जीरो हुई, तो भी इन तीनों के अंदर जो स्टेटस होगा वो क्या होगा, इट विल बी 0 0 0। सो अगर 0 0 0 स्टेटस है तो इस पर्टिकुलर कोडर का आउटपुट क्या है, 0 0। इस पर्टिकुलर कोडर का आउटपुट क्या है, 0 0। सो हम यहाँ पर इसको मेंशन करते हैं, दिस इज द वे। आप एक बार देख लो फिर आपको समझ में आएगा। अगर इनपुट 0 था तो आउटपुट भी 0 0 होगा, राइट? अगर इनपुट 1 था, इनपुट 1 था, सो अगर पहले इनपुट 1 गई थी तो डीके की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और ये दोनों क्या रहेंगे, 0 0, है ना, क्योंकि पहले से 0 0 थे। तो 0 0 1 अगर ये स्टेटस आता है तो आउटपुट क्या होगा, 1 1, राइट? सो अगर इनपुट 1 गया था तो आउटपुट क्या होगा, 1 1। अब समझिएगा, मैंने ऑलरेडी ये टेबल क्यों बना के रखी है आपके लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। मैंने क्या किया,
मैंने देखा कि सर मेरे पास ये वाला फिगर है, मुझे इसका कोड ट्री डिजाइन करना है इस वाले फिगर का, राइट। सो मेरे पास 3 शिफ्ट रजिस्टर है, डीके, डीके माइनस 1, डीके माइनस 2। सो इन तीनों बिट में क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इनके स्टेट्स क्या क्या हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जीरोस एंड वंस। तो 0 0 0 से लेकर मैंने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ड्रॉ कर लिए 1 1 1 तक के, ये इनके स्टेट्स हो सकते हैं। कोई भी डेटा आप इसमें इनपुट कराइए, 0 1 के यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। अब अगर ये वैल्यूज इनके अंदर कभी भी हो तो इन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या हो सकते हैं इस कन्वोल्यूशन इनकोडर के, वो भी मैंने सारे डाउनलोड राइट लिख के रख लिए, राइट। सो ये बिल्कुल जनरल है, कोई भी डेटा आप इनपुट कराइए, इन तीनों में या तो 0 0 0 होगा या 1 1 1 होगा या इसके बीच के कोई भी पोजीशंस होंगे, राइट। और अगर कुछ भी होगा तो उसका आउटपुट क्या होगा वो हम लोग इस पर्टिकुलर मॉड्यूलो टू एडिशन वाले फॉर्मूले से निकाल के रख सकते हैं यहाँ पर, फाइन। तो इसका मतलब 0 0 0 है तो आउटपुट 0 0 होगा, 0 0 1 है तो आउटपुट 1 1 होगा, ऐसे करके हमने सारे कॉम्बिनेशन निकाल के रखेंगे। अब हम एक जनरल बात कह रहे हैं, मेरे पास दो केस हो सकते हैं कि इनपुट बिट 0 हो या इनपुट बिट 1 हो। अगर इनपुट बिट 0 है तो मुझे ऊपर जाना है, अगर इनपुट बिट 1 है तो मुझे नीचे जाना है। अगर इनपुट बिट 0 है तो आउटपुट क्या रहा होगा, 0 0 रहा होगा, कोड क्या रहा होगा, VK1 VK2 0 0 रहे होंगे। अगर इनपुट बिट 1 है तो आउटपुट क्या रहा होगा, 1 1 रहा होगा। ये मुझे रखना है, लिखना है, राइट। ये मुझे हेल्प करेगा कि कैसे मैं कोड करूंगा डेटा को, फाइन। इस जगह पर आने के बाद अब हमने एक बिट इंटर कराई, पहली बिट हमने पहला ट्रांजेक्शन किया वेयर आई हैव इनपुटेड आइदर 0 और 1, तो ये कंडीशन निकल के आ गई। अब मैं अगली बिट इंटर करा रहा हूं, पहली बिट जब मैंने इंटर करा दी उसके बाद जो अगली बिट जाएगी वो फिर 0 या 1 हो सकती है। तो मान लीजिए दो केस होंगे कि पहले इनपुट बिट 0 थी जो पहली वाली थी, उसके बाद अगली बिट भी, उसके बाद अगली बिट के भी आने के दो पार्ट हो सकते हैं, या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा, फाइन। तो अब मान लेते हैं कि अगली बिट भी 0 आई, अगली बिट भी 0 आई, मतलब पहले आपने 0 इनपुट कराया था उसके पीछे फिर से 0 आ गया, तो हम इस केस पे पहुंच गए। अगर फिर से 0 आएगा तो भी इन तीनों स्टेट्स में कोई फर्क नहीं होगा, ये 0 0 0 ही रहेंगे। तो इसका मतलब अगर अगली इनपुट बिट भी 0 है तो आउटपुट क्या आएगा, हमेशा 0 0 ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर अगली इनपुट बिट 1 है, राइट, तो स्टेटस क्या हो जाएगा इन तीनों डीके, डीके माइनस 1, डीके माइनस 2 का हो जाएगा 1 0 0, क्या हो जाएगा 1 0 0। सो 1 0 0 कहां रहा, ये रहा 1 0 0, ठीक है। तो 1 0 0, या फिर ऐसे कर लें इसको, जैसे आप ये कहते हो ना 0 0 1, डीके के स्टेट क्या है 1 और बाकी डीके माइनस 1 और डीके माइनस 2 क्या है 0 0, ठीक है। इसी हिसाब से चल लेते हैं। सो हमने क्या किया 1 0 0 की जगह से ऐसे पढ़ लो 0 0 1, ठीक है। ये डीके माइनस 2 हो गया, ये डीके माइनस 1 हो गया, ये डीके हो गया, प्रेजेंट बिट 1। सो अगर ऐसा है 0 0 1 तो आउटपुट क्या आएगा 1 1। हाँ, अगर उसके पीछे वाली बिट 1 आ गई तो हम नीचे चले जाएंगे, क्योंकि 0 आना है तो ऊपर जाना है, 1 आना है तो नीचे जाना है। अब आप यहाँ खड़े हुए हो ना इस जगह पर, यहाँ से 0 आएगा तो ऊपर जाएंगे, यहाँ से 1 आएगा तो नीचे जाएंगे। अब यहाँ से 0 आ गया तो फिर तीनों शिफ्ट, तीनों की वैल्यूज क्या होंगे 0 0 0 ही होंगे। तो 0 0 0 का आउटपुट क्या आता है 0 0, तो 0 0 लिख लिया। अब अगर 1 इनपुट कराया था तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, तो 0 0 1 0 0 1 आउटपुट क्या आ गया 1 1, 1 1 लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, फाइन, यस ओके। अब मैं सर, फिर से आता हूँ, हाँ हाँ बोलो बेटा, सर इसे रिपीट कर दीजिए एक बार स्टार्ट। फिर से शुरू करते हैं। चलो, कोड ट्री बनाने के लिए हमने क्या किया, हमारे पास कन्वोल्यूशन इनकोडर है, ठीक है। कन्वोल्यूशन इनकोडर का कोड ट्री डिजाइन करना है मुझे, ठीक है। फायदा क्या होगा इससे अभी देख लेंगे, कोई भी डेटा आप एंट्री कराओगे ना तो हम लोग फटाफट कोड निकाल लिया करेंगे, हमें बार बार ये कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज ये कैलकुलेशन वाला एक रास्ता तो मेरे पास है, ऑलरेडी है, बट इनकोडिंग का तो है, डिकोडिंग में कोड ट्री की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो हमें कोड ट्री पढ़ना ही है, राइट। क्योंकि डिकोडिंग में कोड ट्री मुझे बहुत हेल्प करेगा। अब कोड ट्री बनाते कैसे हैं, कोड ट्री का मतलब तो साफ है, ट्री वर्ड से ही पता चल रहा है कि वी विल हैव ब्रांचेस, है ना, ट्री के अंदर क्या होते हैं ब्रांचेस होते हैं। अब इसके एक रूल इसमें ये है कि व्हेनेवर योर इनपुट बिट इज 0 आपको ऊपर की तरफ मूव करना है, व्हेनेवर योर इनपुट बिट इज 1 आपको नीचे की तरफ मूव करना है। जहां भी आप खड़े हो वहां से या तो ऊपर जाना है या नीचे जाना है, ऊपर जाना है if 0, नीचे जाना है if 1, राइट। सो अब सबसे पहले से शुरुआत कर रहे हैं, जब सब कुछ 0 0 था, यहाँ पर सब कुछ 0 0 था, पहली बिट आएगी, राइट। तो फिर दो केस हो सकते हैं, या तो वो 0 आएगी या फिर 1 आएगी। अगर 0 आएगी तो मुझे ऊपर की तरफ भागना है, अगर वो 1 आएगी तो मुझे नीचे की तरफ जाना है, ठीक है। अगर वो 1 आई तो सॉरी 0 आई ऊपर की तरफ हम गए,
तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है इसके ऊपर इस स्टेटस को लिख देंगे कि 0 इनपुट किया था, आउटपुट क्या आया था 0 0। ठीक है, अब हम नीचे वाले देखेंगे कि 1 इनपुट किया था तो आउटपुट क्या आएगा। अब जब आप 1 इनपुट करोगे तो डीके की वैल्यू 1 हो गई, दोनों ये 0 0 है पीछे वाले, तो 0 0 1, इसका आउटपुट क्या है 1 1। सो 1/1 1। अब आप यहाँ आके खड़े हो गए, इस जगह पर आके खड़े हो गए। ठीक है, ये पहला ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया। नाउ सेकंड इटरेशन में फिर दो चांसेस हो सकते हैं कि या तो 0 आएगा या 1 आएगा, लेकिन इस बार पीछे वाली बिट भी देखनी पड़ेगी क्योंकि पीछे 0 था या 1 था। तो आप यहाँ खड़े हो, इसका मतलब आप ये कह रहे थे कि पिछली वाली बिट 0 आई थी। अब पिछली वाली बिट 0 थी, अब अगली बिट फिर 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। अगर 0 है तो ऊपर जाना है, अगर 1 है तो फिर नीचे जाना है। अगर 0 हुई ऊपर जाएंगे, तो फिर 0 जब बिट आएगी तो फिर से 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और पहले भी 0 थे तो 0 0 0 ही रहेगा। तो 0 0 0 का आउटपुट क्या आएगा 0 0। सो योर इनपुट बिट इज 0, लास्ट बिट इज 0, आउटपुट क्या है 0 0। अब अगर पिछली अगली बिट आप 0, पिछली बिट 0 थी बट इस बार बिट 1 आ गया, राइट। सो इसका मतलब डी के यानी इस बिट की पोजीशन तो 1 हो गई ना, इसकी 1 हो गई, ये 0 था और इससे पहले तो 0 ही था, तो 1, ये 0 0 1, तो 0 0 1, इसका आउटपुट क्या है 1 1। सो मैंने ऑब्लिक करके 1 1 लिख दिया। फाइन, क्लियर है सर। ओके। नाउ अब हम लोग फिर से पहले वाले इटरेशन पे आते हैं। अगर बिट 1 आई होती और मैं यहां खड़ा होता तब क्या होता, फिर दो बातें होती, या तो मैं 0 आता तो ऊपर जाता, 1 आता तो मैं नीचे आता। तो मैं दोनों केस बना लूंगा। मैंने कहा कि दोनों केस बना लेते हैं। अगर 0 आएगा तो हम यहां पहुंचेंगे, ये 0 आ गया, राइट। अब अगर प्रेजेंट बिट 0 है, पिछली बिट 1 थी, और उससे पिछली वाली बिट क्या होगी 0 होगी, ध्यान देना। ठीक है, अगर 1, पहली बिट 1 गई थी तो यहाँ 1 रहा होगा, फिर जब उसकी अगली बिट 0 आएगी तो ये वाला 1 यहाँ चला आएगा, ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ क्या रहा होगा 0। सो इट इज 0 1 0, राइट। सो इट इज 0 1 0, 0 1 0 का आउटपुट क्या है 1 0। अब अगर 1 आया रहा होगा 1, ठीक है। सो 1 प्रेजेंट बिट 1, पिछली बिट 1, और उससे पिछली बिट वाली बिट क्या है 0 ही है, क्योंकि अभी वहां तक तो पहुंचे नहीं हम लोग। सो 1 1 0, 1 1 0 का आउटपुट क्या है 0 1। ठीक है, तो 0 1 1 होगा, हाँ 0 1 1। ये होगा 1 1 0। डीके तो ये है ना, डीके डीके -1 और डीके -2। अच्छा हाँ, तुम्हारे हिसाब से 0 लेफ्ट साइड से, वो राइट साइड से देखेंगे 0 1 1 का आउटपुट क्या है 0 1 0 1। 0 1 ही आ गया। देखो सेम, तो आई की बात वही आएगी। यस सर। तो ये आ गया आपका 0 1, ये आ गया। बेटा यहां तक समझ में आया क्लास, मुझे बताओ। यस सर। कोई डाउट हो तो पूछ लेना अभी, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ 2 ब्रांचेस हैं, ये बढ़ती ही चली जाएंगी अब। नो डाउट सर। वेरी गुड। सो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट ब्रांच पर आके हम यहाँ खड़े हो सकते हैं, या हम यहाँ हो सकते हैं, हमारी पोजीशन ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेरी पोजीशन ये है तो यहाँ से फिर 2 रास्ते हैं। अगर मेरी पोजीशन ये होती तो भी मेरे पास 2 रास्ते होते, अगर मेरी पोजीशन ये होती तब भी मेरे पास 2 रास्ते होते, अगर मेरी पोजीशन ये होती तब भी मेरे पास 2 रास्ते होते, राइट। अब मान लीजिए यहाँ आते हैं, यहाँ खड़ा हूं मैं, तो अब ऊपर जाऊंगा तो 0 आया होगा तो ऊपर जाना है, मान लीजिए 0 आया था। अब अगर ये 0 आ गया, अगर ये 0 आ गया तो आउटपुट क्या होगा 0 0 0, तो आउटपुट 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर 1 आया होगा यहाँ पर, तो बताओ क्या आउटपुट होगा 1 1। अब लोग बोलो 1 1 होगा। 1 1। वेरी गुड, क्योंकि क्या होगा ये 1 है तो 0 0 1, 0 0 1, तो क्या आ गया 1 1। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस वाले 1 की यहाँ बात करूं, यहाँ 0 आया होगा, तो देखो ये क्या है 0 1
0 है ना, 0 1 0, 0 is dk, 1 is dk minus 1, 0 is dk minus 2, तो 0 1 0, 0 1 0 क्या है 1 0, ठीक है। अगर 1 आया होगा तो क्या होगा 0 1 1, 0 1 1 का क्या है 0 1, 1 1 वेरी गुड। अब अगला आ जाओ यहाँ पर, यहाँ अगर 0 आया होगा तो क्या होगा, बोलो, 1 1 1 वेरी गुड, 1 1 1 0 0। अब अगर यहाँ 1 आया होगा तो क्या होगा, 0 0 वेरी गुड। अब अगर यहाँ पर 0 आया होगा तो क्या होगा, 0 1 वेरी गुड। अब अगर यहाँ पर 1 आया होगा तो क्या होगा, 1 0 और ये फिर ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा अप टू n इटरेशंस, राइट। यू कैन ड्रॉ इट फॉर n इटरेशंस, फाइन। अभी देखो एक चीज ध्यान से, इसमें एक हिंट बता रहा हूं आपको विच विल हेल्प यू। अगर आप ध्यान से देखें कि जिस भी जगह खड़े होकर आप ऊपर की तरफ देखेंगे, जो भी आउटपुट आता है उसका ठीक अपोजिट आउटपुट नीचे वाले बिट पे आता है। जैसे ऊपर अगर 0 0 है तो नीचे क्या आएगा 1 1, देखो यहाँ क्या था 1 0, तो यहाँ क्या आया था 0 1। देखो इस ब्रांच के दोनों आउटपुट देखो 0 0 और 1 1। इसका पहला वाला क्या था 1 0, तो अगला क्या आना चाहिए था 0 1। ये 1 1, ये 0 0, ये 0 1, ये 1 0। ऐसे आपको हिंट ये मिल जाएगा कि आप सही जा रहे हो या गलत कर रहे हो, ठीक है। अगर कहीं ऐसा आ जाए कि 0 पर 1 0 आ गया और 1 पर भी 1 0 आ जाए, आप समझ लीजिए कुछ गड़बड़ कर गया, ठीक है। ये हमेशा फ्लिप होके आएंगे, बिट्स हमेशा कैसे आएंगे फ्लिप होके, ठीक है, और ऐसे आते चली जाएंगे, फाइन। अभी देखो जरा ये फिर कैसी शक्ल अख्तियार कर लेगा धीरे धीरे कोड ट्री, ये कुछ ऐसी शक्ल अख्तियार कर लेगा, ठीक है, दिख रहा है। इन्होंने इनपुट बिट नहीं दिखाई है, सिर्फ आउटपुट दिखा रहे हैं, ठीक है, ये सिर्फ आउटपुट दिखा रहे हैं। बस इन्होंने कहा अगर ऊपर जा रहे हो तो ऑटोमेटिक इट शुड बी अंडरस्टूड कि ये 0 है, नीचे जा रहे हो तो इट शुड बी 1, इनपुट 1 रहा होगा तभी नीचे आएंगे। सो अगर आप ऐसे नीचे जा रहे हो तो इसका मतलब आप कंसीडर कर रहे हो कि इनपुट 1 है, उसका आउटपुट क्या है बस इन्होंने ये दिखाया। आप मैच कर सकते हो, जो हमने भी बनाया है वो पूरा इनके जैसा ही आ रहा है। अब ये बनाते चले जाइए आगे, कितना भी आगे चलते चले जाइए इसको बनाते हुए, ठीक है। टू चेंज हो जाएंगे, पूरा कोड ट्री चेंज हो जाएगा। सो यू हैव टू डिजाइन योर कोड ट्री फॉर अ पर्टिकुलर इनकोडर, बार बार करना पड़ेगा। बट इसका फायदा सिर्फ एक है कि आप अब इसमें इनपुट को क्या कुछ भी करा दिए 1 1 0 1 1 जो आपका मन करे, और आप उसके करस्पॉन्डिंग इसका कोड ड्रॉ कर लीजिए। कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी देखना है अभी, ठीक है। अब देखो मान लो जो डेटा लिया था हम लोगों ने, मैं उसी डेटा को लेने की कोशिश करता हूँ ताकि वेरीफाई कर पाए हम लोग। ऑल्दो इससे पूरा कोड नहीं निकलेगा बिकॉज वी हैव नॉट डिजाइन द फुल कोड ट्री, बट फिर भी मैंने डेटा लिया था 1 1 0 1 0 पिछली बार, ठीक है, जिसका कोड हम लोगों ने निकाला था, आप लोगों ने निकाला भी होगा उसको। अब हमें क्या करना है, कैसे कोड ट्री से कोड डिजाइन करते हैं ये देखना है, राइट। सो कोड ट्री से कोड डिजाइन कैसे होता है, देखो पहली बिट 1 है, इसका मतलब आप नीचे की तरफ चलोगे, ये पाथ फॉलो करना है आपको, ऐसे डॉट डॉट खींचना है, ऐसे ऐसे 1 यहां तक आ गए। अगली बिट फिर 1 है, फिर नीचे की तरफ चलेंगे, ठीक है। फिर अगली बिट क्या है 0, तो ऊपर की तरफ चलेंगे, ऐसे करके जाएंगे, ठीक है। फिर अगली बिट क्या है 1, यानी अगले वाले में जहां भी जो अगला ब्रांच बनेगा इसके आगे उसमें नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है। फिर अगला बिट क्या है 0, यानी कि इसके बाद जो भी ब्रांच बनेगा उसमें ऊपर की तरफ जाएंगे और जाते रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से कोड आप डिजाइन करेंगे। कोड कैसे डिजाइन होगा, कोड विल नथिंग बट द आउटपुट्स, ये जो आउटपुट है ना इनको नोट डाउन करते जाना है। जैसे यहाँ 1 1, फिर अगली बिट क्या है 0 1, फिर अगली बिट क्या है 0 1, फिर आगे हमने नहीं बनाया। तो द वे हाउ यू डिजाइन द कोड ट्री, राइट। हम पुराने वाले फिगर में भी देखते हैं एक बार, उसमें उन्होंने कितने ब्रांचेस का बनाया हुआ है मुझे नहीं पता, ये मैंने बीपी लाठी से लिया है। देखो यहाँ पर इन्होंने कैसे दिखाया, अगर डेटा हमारे पास क्या है 1 1 0 1, यही था ना डेटा 1 1 0 1 0, राइट। सो अभी क्या करना है, पहली इनपुट बिट क्या है 1, कोड ट्री आपके पास बना हुआ है ऑलरेडी, यू आर हैविंग दिस कोड ट्री। आपने कहा ये सब 1 आया तो मैं नीचे की तरफ चल दूंगा, ये आउटपुट नोट कर लेंगे 1 1। फिर क्या आ गया 1, फिर मैं नीचे की तरफ चल दूंगा, ये आउटपुट नोट कर लूंगा 0 1। फिर अगला बिट क्या है 0, मैं ऊपर की तरफ चला जाऊंगा, ये आउटपुट नोट कर लूंगा 0 1, ठीक है। फिर अगला बिट क्या है 1, तो मैं यहां से नीचे की तरफ चला जाऊंगा, ये आउटपुट नोट कर लूंगा, इट इज 0 0।
फिर अगला आउटपुट क्या है 0, तो मैं ऊपर की तरफ चला जाऊंगा, ये बिट आ जाएगी मेरी समझ से 1 0, ठीक है। और इसके बाद फिर लास्ट में जो भी बिट आएगी, क्योंकि 0 0 तक लेके जाना है, तो वहां तक जाने के बाद इस कोड ट्री को एंड कर देंगे, ये इस तरीके से कोड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये फिगर वही रखते हैं, कोड ट्री सेम रहेगा, डेटा चेंज कर देते हैं, मान लीजिए 0 0 1 0 ये हो जाता है मेरा डेटा। तो अब मुझे क्या करना पड़ता है, फिर से सारे कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, मॉडुलो टू एडिशन वाले, है ना। अब मुझे ये नहीं करना है, अब मैं इसी कोड ट्री में क्या करूंगा, इसी कोड ट्री में मैं चला जाऊंगा कि पहली बिट क्या है 0, तो मैं ऊपर की तरफ चला जाऊंगा, राइट, ये पहला आउटपुट आ जाएगा। फिर दूसरी बिट क्या है 0, अब मैं फिर एक बार और ऊपर की तरफ चला जाऊंगा, ये वाला आउटपुट आ जाएगा। फिर तीसरी बिट क्या है 1, अब मैं नीचे की तरफ चला जाऊंगा, ये वाला आउटपुट आ जाएगा। फिर चौथी बिट क्या है 1, अब मैं 0, फिर मैं ऊपर की तरफ चला जाऊंगा, ये वाला आउटपुट आ जाएगा। सो माय कोड इज व्हाट, इट इज 0 0 0 0 1 1 1 0, दिस इज माय कोड। कोई भी डेटा बिट आप इनपुट करें उससे इंडिपेंडेंट है ये कोड ट्री, मतलब आप किसी भी डेटा के लिए कोड इस कोड ट्री को देख के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक बार डिजाइन करना पड़ता है कोड ट्री को, देन फिर ये इस पर्टिकुलर कोडर के लिए एक तरीके से जनरेटेड ग्राफिकल कोड आ गया आपके पास। अब आप कोई भी डेटा इनपुट कराइए, आप सिर्फ एक पाथ फॉलो करके, एल्गोरिथम है ये, इसको फॉलो करके आप कोड को डायरेक्टली लिख सकते हैं। अदरवाइज हमें हर बार हर डेटा के लिए जो कोड है वाला स्टेजेस को देख के मॉडुलो 2 वाला कैलकुलेशन करके कोड्स को लिखना पड़ेगा और फिर उसको डिजाइन करना पड़ेगा। सो वो एक्चुअली एक बिट के लिए करना है तो वो इजी प्रोसेस है। बट अगर मैं आपको दे दूं कि जनरेट द कोड फॉर एटलीस्ट 10 पॉसिबल डेटाज, मैं यहाँ पर 10 पॉसिबल डेटाज लिख दूं आपके पास, है ना, 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1, कुछ भी ऐसे लिखते चला जाऊं, ठीक है। इन सब के लिए कोड डिजाइन करो तो देन इट विल बिकम अ कॉम्प्लेक्स टास्क दैट एवरी टाइम यू हैव टू take a data and how you have to do the modulo addition for every data, right, data bits.